Hello and welcome to Lakshya Academy video series. As usual, we are coming out with some fascinating material for you. And today, with IR subject, we are going to have a good presentation on India, Afghanistan, and Taliban relations. India and Afghanistan have historical ties. Because of existence of Pakistan, Afghanistan looks a bit far from India. पर अगर आप इंडिया के अगर 1947 तक की मैप देखें तो अफगानिस्तान वाज अ नेबर ऑफ इंडिया. सो बेसिकली द लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया is called as a Durand line. And with that particular line, Afghanistan was differentiated. It was divided from India because if you consider Soviet Union ka map till 1991, Soviet Union was a neighbor of Afghanistan. Because if you consider the map of Soviet Union, that is with Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan. अगर इन सबको देखा जाए तो सोवियत यूनियन अफगानिस्तान का नेबर था और बहुत शतकों के लिए अफगानिस्तान was also part of India. And Afghanistan is a country that lies also in Bharatvarsha or the Indian subcontinent. सिचुएशन दोस्तों ऐसी है कि सोवियत यूनियन और इंडिया के बीच में एक कई अंतर रहे ब्रिटिश इंडिया के बीच में, इसलिए ब्रिटिशों ने अफगानिस्तान को इंडिया से अलग किया. तो ऐसी है दास्तान, अफगानिस्तान हमसे अलग क्यों हुआ. फिर भी हमारी जो सिविलाइजेशन है उस सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान से आता है. ऋग्वेद वहां लिखे गए जो हिंदू या वैदिक धर्म के लिए बहुत अहम है. अगवेस्ता जो है जो पारसी धर्म के लिए बहुत अहम है वो वहां लिखे गए. तो ऐसा अफगानिस्तान है जिसके इंडिया के साथ हिस्टोरिकल लेवल पे टाइज है. पर हिस्टोरिकल टाइज होना अलग होता है और करंट अफेयर्स में जो हालात साझा हालात जो है उनको मद्देनजर देख के कुछ कहना अलग होता है. नाउ as I said, late 1940s only started the Cold War. And in 1980, 79-80, Afghanistan was attacked by the Soviet Union. Now, basically, what was Cold War? Cold War was a term given by Walter Lippmann. Walter Lippmann said it is basically a war without war because Soviet Union on the other one hand and United States of America on the other hand, they were always tense against each other. They were cutthroat enemies of each other. There was a fierce competition against each other, but at the same time, no single bullet was shot between two. So that was called as a war without war. So it was a Cold War. पर फिर भी इन्होंने ऐसा नहीं किया कि शांति रखी. इन्होंने अपने लेवल पे एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू किए. तो फिर जब यूनाइटेड स्टेट्स में जब आक्रमण किया वियतनाम में, उस वियतनाम को सपोर्ट दिया तब सोवियत यूनियन ने. उसके बाद जब सोवियत यूनियन ने आक्रमण किया अफगानिस्तान में, उस अफगानिस्तान को समर्थन दिया था यूनाइटेड स्टेट्स ने, बट सीधा समर्थन नहीं दिया, वह पाकिस्तान समर्थन दिया था. So because of this cutthroat competition between two superpowers, the area which faced the brunt of this was Afghanistan. Now, in 79-80, the Soviet Union invaded Afghanistan. It was not just an invention. It was basically civilization. Afghanistan, which was officially a Muslim nation, now was converted into the communist nation. The communists do not follow any particular religion. पर जब ये अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन ने अपने हाथ पर जमा लिए, जब सोवियत यूनियन की में अफगानिस्तान की जब एक जो किंगडम आके बैठ गई, ओके, एट दैट टाइम so United States decided to wipe out the Soviet soldiers from Afghanistan. पर वियतनाम हो या कुछ और वॉर हो, यूनाइटेड स्टेट्स के सोल्जर को ये समझ चुका था कि जमीन पे उतर के सोवियत यूनियन के सोल्जर्स को हराना बहुत खर्चे का काम होगा, बहुत टेंशन भरा काम होगा, शायद इम्पॉसिबल भी होगा. और तब तक की जो कोल्ड वॉर की परंपरा थी कि प्रॉक्सी वॉर करते हैं, वो परंपरा भी कायम रखनी थी. इसीलिए सोवियत यूनियन को वहां से निकालने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान की हेल्प ली. एंड देन व्हेन पाकिस्तान got the help from United States, it created a lot of mujahidins. It created a lot of mujahidins in Pakistan. I mean, those mujahidins were trained to fight against the Soviet soldiers. The Soviet soldiers were not at all believing in any god because communism by default doesn't believe in any god. At the same time, Soviet Union's regime in Afghanistan was not at all a public welfare regime. तो ये सारी जो चीजें थी वो जिहाद के अपने जो एक मार्ग रहता है या फिर जिहाद के अपने तरीके रहते हैं उनमें कायम थी, क्योंकि ये इनके खिलाफ लड़ाई जो है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई, जो ऊपर वाले को नहीं मानते उसके खिलाफ लड़ाई, उसे तो जिहाद कहा जाता है. सो
इसीलिए मुजाहिदीन को तैयार कर करके वहां भेजा गया अफगानिस्तान द्वारा, और इस पूरे प्लान को फाइनेंस करने का काम किया गया अमेरिका द्वारा। फाइनली सोवियत यूनियन विड्रू फ्रॉम अफगानिस्तान। Finally, Soviet Union withdrew from Afghanistan because they were heading for the end of Cold War. In 1986, the regime of Mikhail Gorbachev arrived in Soviet Union, और उन्होंने एक दिन डिसाइड कर दिया कि अब बहुत कुछ हो गया, अभी बहुत खर्चा हो गया, उसमें से आउटकम क्या निकला पता नहीं। जैसे अभी अमेरिका को रियलाइजेशन हो रहा है अफगानिस्तान के बारे में, तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं भाई, अभी हम अफगानिस्तान से निकलते हैं। एंड इन 89 सोवियत यूनियन लेफ्ट अफगानिस्तान। विदिन 1.5 year कोल्ड वॉर वाज ओवर। बट जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को अलविदा किया, एट दैट टाइम जो मुजाहिदीन तैयार हुए थे उन्होंने तो अफगानिस्तान को अपना माना था, अपनी कर्म भूमि माना था। अब हुआ सिचुएशन ऐसे कि जब मुजाहिदीन का आपने इस्तेमाल किया सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए, उसके बाद इन मुजाहिदीन का इस्तेमाल कैसे करे, इन्हें ऐसे इस्तेमाल करे या वैसे इस्तेमाल करे, ये कोई प्लान यूएस के या फिर पाकिस्तान के मन में था नहीं। और जब भी कोई मुजाहिदीन या फिर अगर कोई टेररिस्ट होता है, उसके लिए जब शांति का समय है, वो शांति का समय उसके लिए बेरोजगारी का समय होता है। So what happens is when the terrorists are finding a peace out everywhere, at that time they start feeling lonely, they start feeling unemployed and left out. So in order to preserve, in order to create their own in their own existence, okay, and influence, terrorists sought again for the terrorist activities. So अफगानिस्तान से सोवियत ने विड्रॉ करने के बाद 5 या 6 साल के लिए सिर्फ सोवियत यूनियन में एक शांति कायम थी, और उसके बाद 95 में सोवियत यूनियन में तालिबान आए। तालिबान ने सबसे पहले क्या किया? तालिबान ने सबसे पहले वहां के जो सत्ताधारी थे उनको खदेड़ दिया, वहां के उनके जो अध्यक्ष थे उनको भी पहले तालिबान ने खत्म कर दिया। तालिबान की रिजीम ये बहुत ही एक रिग्रेसिव रिजीम थी। तो तालिबान को तब 98-99 में आने वाले फोन से कोई मतलब था, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से मतलब था, ना उनको कोई वहां के टीवी सेट से मतलब था। सोवियत यूनियन वहां से निकला, और सोवियत यूनियन के निकलने के बाद कहीं शांति या फिर समृद्धि या फिर एक अमन की आशा जो थी अफगानिस्तान के लिए, वो एक महज एक भ्रम निर्माण तैयार हुई। रीजन उसका ये था कि आपने टेररिस्ट को क्रिएट तो किया, पर उसको क्रिएट करने के बाद जब उसका काम हो जाता है, उसके लिए शांति, अमन, ये सारी चीजें बेरोजगारी का पीरियड रहता है। सो ही ऑलवेज वांट्स टू preserve and prove his relevance in the ongoing era. So terrorists always resort to the terrorist activities. So as a result of this, immediately 6 years after the withdrawal of Soviet Union in 1995, Taliban revolution took place in Afghanistan, and they first of all made all the people who were ruling over there go out of the Afghanistan. At the same time, they also hanged the rulers of Afghanistan. And because of that, it was proven that Taliban is nothing but a terrorist organization, and Taliban was a very regressive organization. क्योंकि जब सोवियत यूनियन के बाद अफगानिस्तान की कोई भी प्रगति हुई थी, या फिर कोई दुनिया भर में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हो, या फिर तब तक 98-99 में आने वाले अगर कोई मोबाइल्स हो, तो ऐसे माहौल में सोवियत यूनियन के बाद जो भी कुछ अफगानिस्तान में हुआ था, उसके लिए उस पे तालिबानी लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक नफरत थी। क्योंकि कोई भी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हो, या फिर आपके मोबाइल फोन्स हो, आपका कोई म्यूजिक हो, तालिबान को हर चीज से नफरत थी। बिकॉज ये सारी चीजें आपको खुदा के रास्ते से परावृत करती है, वहां जाने से रोकती है, ये शैतान का काम है, ये मानने वाले ये तालिबानी लोग थे। सो तालिबान revolution and a regressive outlook for and policies towards the Soviet Union, not Soviet Union, it's towards Afghanistan, was basically a big trouble for the world. पर तब तक दुनिया को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, और पता हो भी तभी भी दुनिया को उसके बारे में कुछ, हमारी भाषा में कहा जाए तो, लेना देना नहीं था। फिर आया आपका 9/11। 9/11 ये पहला एक ऐसा हमला था जो अमेरिका की अपनी जमीन पे हुआ। उससे पहले अमेरिका में कोई हमले इतने बड़े लेवल पे नहीं हुए। पर्ल हार्बर अमेरिका का मेनलैंड पार्ट नहीं होता, पर 9/11 जो हुआ, आप अगर ठीक से देख रहे हो तो जो पहला, अगर आप फोटो देख रहे हो, ये एक लाइव हमला था। क्योंकि पहला हमला ऐसा हुआ कि लोगों को लगा कोई एक्सीडेंट है
या पहले कोई आग लगी है तो बाद में पता चला बहुत बड़ी आग लगी है, बाद में पता चला वहां एक फ्लाइट घुस गया है, बिल्डिंग्स बहुत छोटी दिख रही है पर एक छोटा फ्लाइट घुसने के लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग्स है। तो लोगों को लगा कि ये कोई एक्सीडेंट तो होगा, फ्लाइट घुसी। और जब ये लोग देख रहे थे कि ये कोई एक्सीडेंट हो चुका है, तब भी जाके दूसरा हमला दूसरी बिल्डिंग पे हुआ। फिर वो ट्विन टावर्स पूरे के पूरे नीचे आए। ये पहला एक मजहबी हमला था जो अमेरिका को हुआ। अमेरिका को सब कह रहे थे कि दूरी ये कोई सुरक्षा का कारण नहीं हो सकता, आप दुनिया से दूर हो इसका मतलब ये नहीं कि आप महफूज हो। तो ये 9/11 के हमले के बाद international relations was completely changed. It was pre 9/11 and post 9/11. For the first time, when America faced the brunt of international terrorism, for the first time, international terrorism became a terminology post 9/11. So this is very important. और इसके बाद अगर अमेरिका के रडार पे अगर कोई आया रहेगा तो कौन था? वो तालिबान था, क्योंकि तालिबान ने ही ओसामा बिन लादेन, जिसको कहा जाता था कि 9/11 का मास्टरमाइंड है, उसे पनाह दी थी, ऐसा अमेरिका को पता चला था। एट द सेम टाइम पाकिस्तान, which was also a home for international terrorism, was also trying to tell Pakistan, America that yes we can help you. तो कहीं ना कहीं पोस्ट 9/11 पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स है वो बदल गई। और फिर एक बार अमेरिकन सोल्जर्स जो थे वो अफगानिस्तान में घुसे और उन्होंने तालिबान की जो रेजिम थे उन्हें परास्त कर दिया। 2001 के एंड तक ये तो पता चला कि पावरफुल अमेरिका के सामने अफगानिस्तान में जो तालिबान रेजिम है उनका टिकना मुश्किल है, बिकॉज इतनी बड़ी मात्रा में वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वॉरफेयर, स्ट्रेटेजिक इश्यूज लेके वो अगर आए तो उनके सामने अगर कोई तुल्यबल सत्ता टिकती थी तो वो भी सोवियत यूनियन जैसी हो सकती थी, पर वो तो थे नहीं। तो फिर तालिबान को परास्त करना अमेरिका के लिए कोई मुश्किल काम था नहीं। And after that particular regime, the Taliban started having some kind of peace and tranquility in that particular area. Now, this was a proper period for some infrastructural development in Afghanistan. And this infrastructural development was so important because Afghanistan was now a country in Central Asia. At the same time, it was also having its own position in South Asia. So, Afghanistan SAARC का भी पार्ट है. At the same time, अफगानिस्तान का जो स्थान है वो सेंट्रल एशिया है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि सेंट्रल एशिया का दरवाजा अफगानिस्तान है। एंड बिकॉज ऑफ दैट अफगानिस्तान वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर इंडिया ऑल्सो। और उसके बाद फिर इंडिया ने अफगानिस्तान में एक बहुत बड़े लेवल पे डेवलपमेंट करनी शुरू की। स्कूल्स बांधे, उसके बाद उनके लिए कोई कॉलेजेस बांधे, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज बांधी। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो थी वो डेलाराम जरान्स हाईवे वाली थी, क्योंकि डेलाराम जरान्स हाईवे का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि एक उसका जो पार्ट है वो अफगानिस्तान के नॉर्दर्न पॉइंट पे है और दूसरा जो पार्ट है वो अफगानिस्तान के टोटल सदर्न पॉइंट पे है। अफगानिस्तान के नीचे ईरान है और ईरान के ही सदर्न पॉइंट में इंडिया ने ही बनाया हुआ अपना एक चाबहार करके पोर्ट है। तो होता ऐसे है कि इंडिया अफगानिस्तान का अपना व्यापार जो था वो ठीक चल रहा था, बट व्हेन अफगान गुड्स आर कमिंग आउट विद इंडियन गुड्स वाया पाकिस्तान, दे वर नॉट अलाउड बिकॉज दैट वाज अ पॉलिसी। पॉलिसी ये थी कि अगर अफगानिस्तान के गुड्स अगर पाकिस्तान में जाते हैं तो पाकिस्तान अलाउ कर सकता था, पर पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस चीज को लेके इतना गलत तरीके का मोड़ ले रहा था। So for some period of time, Afghan goods were coming to India via Pakistan, sometimes not. But Indian goods were not at all allowed to go in Afghanistan via Pakistan because Pakistan was completely banning the Indian goods. So Indian goods and services अगर via Pakistan अफगानिस्तान जाना चाहती है तो ये पॉसिबल ही नहीं था। So इसके लिए कौन सा रास्ता है? तो इसलिए इंडिया ने रास्ता चुना कि हम ईरान के थ्रू अफगानिस्तान में जा सकते हैं। तो ईरान में चाबहार करके पोर्ट बना और ये चाबहार पोर्ट से लेके आगे का एक रास्ता और उसके बाद फिर उसके ऊपर का रास्ता जिसे हम डेलाराम जरान्स करके हाईवे करके कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक अफगानिस्तान को भी एक यूज करने के लिए इंपॉर्टेंट था। एंड विद दिस अफगानिस्तान वाज नाउ यूजिंग द अरेबियन ओशन वाया ईरान। सो अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक कंट्री। Naturally, the landlocked countries do have some geographical trouble for their development also.
So they needed to have some coastal area that was provided by this highway via Iran. They could face the Arabian Ocean now, and even our goods started going to Afghanistan via Iran because of Chabahar and later on this Dilaram Zaran's highway. So this was all constructed by the BRO that works under the Defense Ministry of India. पर हुआ ऐसे कि अमेरिका में एक रेजिम आई और उसका उस रेजिम का नाम था डोनाल्ड ट्रंप की रेजिम। जब तक बराक ओबामा थे तब तक कहीं ना कहीं अमेरिका की भूमिका रहती थी कि हम पे दुनिया की जिम्मेदारी है और हम उसे बखूबी निभा रहे हैं। पहले अमेरिका वर्ल्ड पुलिस थी। फ्रॉम आइजनहोवर यू विल फाइंड अमेरिका हैज द रोल ऑफ वर्ल्ड पुलिस एंड ग्लोबल पीस एंड ऑल। दिस इज सीम्स टू बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अमेरिका। उसको उन्होंने कितनी तरीके से बखूबी निभाया, वी रियली हैव नो आइडिया। बट at the same time, America was always going through the concept of world police, and at this moment, America had also taken the responsibility of Afghanistan's peace, progress, and stability. But as soon as Barack Obama regime was gone, Donald Trump regime arrived. Donald Trump decided to take off the soldiers from Afghanistan because Donald Trump was always having a policy called America First policy. With this particular moment, you will find there was some turning the tables around from the America's point of view, and they decided to take off the soldiers from Afghanistan. So एक करके America started disinvesting their soldiers and manpower and money also from Afghanistan. उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप गए, उसके बाद आते हैं जो बाइडेन। इन जो बाइडेन्स era, nothing was changed because there were people who were saying that Joe Biden is completely different from Donald Trump because ideology of two parties is completely different. But Joe Biden has not only continued what Donald Trump was doing, but he has continued in a very different and a very lenient way. So we don't even have any idea that what's going on in the minds of the Americans. And Donald Trump was deciding to withdraw troops and other investments from Afghanistan by the gradual way. Joe Biden did not only retain the idea, but he also did that in a quicker way. So if Donald Trump started off with some problem, Joe Biden agreed with the problem. And now today what has happened is there are hardly few soldiers in Afghanistan who are concentrated in the airport area of Afghanistan. There is a big problem for the future because which Taliban and which Afghanistan, that is going to be a big question. बिकॉज अगर अफगानिस्तान के बारे में अगर बात करने के तो अफगानिस्तान का आवाम सच है या तालिबान सच है। अगर तालिबान आता है तो अफगानिस्तान की सेना कहाँ है? अफगानिस्तान की अगर सेना थी तो वो कहाँ है? और अफगानिस्तान की सेना नहीं थी तो आज तक अफगानिस्तान के जो दो प्रेसिडेंट्स थे, हामिद करजाई थे या उनके बाद कोई और थे, तो वो किस पे टिके हुए थे? वो कौन सी सेना पे टिके हुए थे? या फिर वो सिर्फ सोवियत यूनियन की सेना पे टिके हुए थे? दैट इज अगेन अ बिग क्वेश्चन। नाउ all the troops are withdrawn and now Afghanistan is completely in the clutches of Taliban. Talibans have also finished Panjshir. They have conquered the entire Afghanistan. At the same time, which Taliban is to be dealt with? That is also a big trouble because India को लग रहा था कि साने कज़ाई करके एक ग्रुप है, वो शायद अफगानिस्तान में अगर सत्ता में आए तो उनके साथ बात कर सकते हैं। कोई अलग ही ग्रुप सत्ता में आया एंड उसके बाद मौलाना अखंडजादा करके एक वहां उनके अध्यक्ष बने और उपाध्यक्ष जो बने वो बरादर करके बने। और आज अखंडजादा हो या बरादर हो, ये इन्होंने अपनी हुकूमत वहां जमा ली। उन्होंने एक अच्छी खासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया में डंका पीट लिया कि नाउ ऑनवर्ड्स तालिबान रूल्स अफगानिस्तान। पर दुनिया ये पूछ रही है कि अखंडजादा है किधर, बरादर है किधर? क्योंकि अगर मुल्ला बरादर मिलता नहीं, अखंडजादा मिलता नहीं, तो फिर यूके ने एक न्यूज दी थी, क्या उन्हें मारा नहीं? क्या उन्हें किसी ने मार नहीं गिराया? क्योंकि उनके एक वहां मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग एक दूसरे पर झपट पड़े थे, शायद वहीं कुछ हुआ हो। पर एक ऐसा देश है जो अपने प्रेसिडेंट के बारे में कुछ कह भी नहीं सकता। बरादर का सिर्फ कोई वीडियो आता है, उस पर हम अगर अपना समाधान बना ले कि हाँ कोई ना कोई तो वहां जिंदा है, तो ठीक है, पर ये कहां तक पहुंचेगा? So that is going to be a big problem for the future. So future under a big trouble. That is going to be a big issue. So here we end
the question of India, Afghanistan, Taliban, and United States. I hope you like this lecture. Next lecture, we will come out with some more fascinating issues, stories, and we will like to serve you. So if you like this video, subscribe to the video and do convey about this video to your friends, your relatives, and give us as much response as possible. Thank you so much.